So, Hare Krishna, Prabhuji. Krishna Anjali ji. We are doing the introduction to Bhagavad Gita, a short sketch of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Short life sketch of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Who is Śrī Caitanya Mahāprabhu? सुनीता कौल जी, आप बताइए. सुनीता कौल. प्रभु भगवान कृष्ण का अवतार है चैतन्य महाप्रभु इन कलयुग में. एक्चुअली अवतार नहीं बोलेंगे, कृष्ण भगवान खुद ही है वो. Yes, yes, sorry. It's not avatar. It is the source of all incarnation. चैतन्य प्रभु के रूप हुए हैं. It is another form of ऐसे भी Krishna. हो सकते हैं. The form of Krishna is Chaitanya Mahaprabhu. तो उनका लाइफ स्केच के बारे में डिस्कशन चल रहा है अभी. Okay. So we were here. There are many similar incidents in his childhood. As a naughty boy, he sometimes used to tease the orthodox brahmanas who used to bathe in the Ganges. When the brahmanas complained to his father, जिन्होंने अपना ऑडियो ओपन किया हुआ है, mute their audios. Please mute everybody, but it will not create any disturbance. म्यूट कर लीजिए अपने आप को सारे. His father that he was splashing them with water instead of attending school. The Lord suddenly appeared before his father as though just coming from school with all his school clothes and books. At the bathing ghat, he is also used to play jokes on the neighboring girls who engaged in worshipping Shiva in hopes of getting good husbands. तो ऐसे वो चैतन्य महाप्रभु की कंप्लेंट करते थे कि ये ब्राह्मणों को जो बात ले रहे हैं गंजिस में, उनको भी छेड़ रहा है. तो ब्राह्मण जो थे वो चैतन्य महाप्रभु की उनके पिताजी से शिकायत लगाते थे कि हमारे पे पानी फेंक रहा है, मैं स्कूल पढ़ने के अलावा ये काम कर रहा है. पर चैतन्य महाप्रभु एकदम सीधे बन जाते हैं और स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल के क्लोथ्स में बुक्स लेकर, और वो जहाँ बेदिंग घाट हो रहा है वहां पर जोक्स खेल रहे हैं नेबरिंग गर्ल्स के साथ, जो कि शिव जी की पूजा कर रहे हैं अच्छे हस्बैंड्स लेने के लिए. This is a common practice among us unmarried girls in Hindu families. While they were engaged in such worship, the Lord naughtily appeared before them and said, "My dear sisters, please give me all the offerings you have just brought for Lord Shiva. Lord Shiva is my devotee and Parvati is my maidservant. If you worship me, then Lord Shiva and all the other demigods will be more satisfied." शिव जी की पूजा कर रही हैं अच्छे पति लेने के लिए, तो भगवान कह रहे हैं, ओ बहनों, ये सारी ऑफरिंग्स मुझे दे डालो. तो शिव जी तो मेरे भक्त हैं और पार्वती तो मेरी दासी हैं. अगर मेरी तुम पूजा करोगे तो लॉर्ड शिवा और सारे डेमिगॉड्स भी सारे प्रसन्न हो जाएंगे. ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं? Why he is speaking like that? Who will give the answer? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के थे, तो भगवान because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna only, so he is speaking like Krishna to that neighboring girls, and everything is coming from me only. Lord Shiva is my devotee, Parvati is my maid servant. All the 33 crore demigods are reporting, serving and pleasing me. And if you also worship me, you will be blessed. Agarwal.
Mugdha. Okay. Some of them refused to obey the naughty Lord, and he would curse them that due to their refusal, they would be married to old men who had 7 children by their previous wives. Out of fear and sometimes out of love, the girls would also offer him various goods, and then the Lord would bless them and assure them that they would have very good young husbands and that they would be mothers of dozens of children. The blessings would enliven the girls, but they used often to complain of these incidents to their mothers. इस तरह भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान के पास टाइम्स नॉटी लॉर्ड बोला गया है, नटखट भगवान है, तो मना कर देते, भगवान का ऑर्डर मांगने से मना कर देते। भगवान को श्राप दे रहे हैं, तुमने मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज किया है तो एक बूढ़े आदमी से शादी होगी जिसके ऑलरेडी 7 बच्चे होंगे पिछली बीवियों के साथ। तो कभी डर कर कभी प्यार से वो भगवान को भी ऑफरिंग चढ़ाया करते थे और भगवान उनको आशीर्वाद देते थे और एश्योर करते थे कि आपका अच्छा है, यंग पति आपको मिलेगा और आप कई बच्चों की माँ बनेंगी। तो ऐसे आशीर्वाद मिलके वो इतनी खुश हो जाती थी और वो ये सारी चीजें अपने माता को बताती थी जाकर। Like this kind of incidents happened with Chaitanya Mahaprabhu. In this way, the Lord passed his early childhood. When he was just 16 years old, he started his own Chatushpathi village school conducted by the learned brāhmaṇa. In this school, he would simply explain Krishna even in readings of grammar. Srila Jiva Goswami, in order to please the Lord, later composed a grammar in Sanskrit, in which all the rules of grammar were explained with examples that used the holy names of the Lord. This grammar is still current. It is known as Hari Namamrita Vyakarana and is prescribed in the syllabus of schools in Bengal. इस तरह भगवान ने सारा अपना बचपन ऐसे ही बिताया है। सिर्फ भगवान 16 साल के थे तो उन्होंने एक पूरा एक अपना स्कूल शुरू कर लिया था ऐसे, चतुष्पाठी इस नाम का स्कूल स्टार्ट कर लिया था। तो एक लर्नड ब्राह्मणा उसको चला रहे थे, तो उसमें सिर्फ वो कृष्ण के बारे में समझा रहे हैं, कृष्ण का एजुकेशन दे रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस दे रहे हैं। दिस इज द रियल एजुकेशन एक्चुअली। Prabhupada, we are making Oxford universities, big colleges, big schools, but they are just like slaughterhouses actually, because the science of the soul, the science of the super soul is not being educated in these universities. So they are like kasai ghar actually. They are not teaching any Vedic education, any spiritual education. तो एजुकेशन में ये स्पिरिचुअल एजुकेशन भी इंक्लूड होना है। तो वो ऐसा स्कूल है जिसमें कृष्ण को एक्सप्लेन किया है, ग्रामर में भी। श्रीला जीव गोस्वामी, हु इज जीव गोस्वामी? एनीबॉडी कैन टेल? श्रीला जीव गोस्वामी, हु इज ही? किसी को पता है कौन है जीव गोस्वामी? प्रभा रंजन माता जी। प्रभु जी नहीं पता। यहाँ तो लिखा हुआ है, उन्होंने संस्कृत की ग्रामर के बारे में नहीं वो नहीं है ये। श्रीला जीव गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु के 6 जिन्होंने ग्रामर इन संस्कृत, in which all the rules of the grammar were explained. He is the chief most Goswami, the disciple of Śrī Caitanya Mahāprabhu. चैतन्य महाप्रभु के 6 जो है मेन डिसाइपल्स हैं, जो षट गोस्वामीज हैं, उसमें से मेन जो जूनियर मोस्ट गोस्वामी है, दैट इज कॉल्ड जीव गोस्वामी। ना इन्होंने बहुत बुक्स लिखी हैं, टेम्पल्स बनाए, और वो इन ऑर्डर टू प्लीज द लॉर्ड
later composed a grammar in Sanskrit, है ना, संस्कृत में grammar लिख रहे हैं, in which all the rules of the grammar were explained with examples that use the holy name of the Lord. तो बहुत scholar थे, बहुत learned थे, है ना, तो भगवान को खुश करने के लिए ऐसे कर रहे हैं. वो भी प्रभु जी 6 गोस्वामीज के बीच में थे वो, उनमें से सबसे one छोटे, of the सबसे छोटे उनमें हैं. सबसे छोटे थे, उनमें सबसे छोटे थे. Yes. junior Goswami in 6 Goswami. Yes. उस व्याकरण का, He was the junior most. उस बुक का जो नाम था वो था हरि नामामृता व्याकरणन, जो उन्होंने बुक लिखी थी, हरि नामामृता व्याकरण, और सारे बंगाल के स्कूल में वो सिलेबस में यूज की जाती थी. प्रभु जी हरि नामामृता व्याकरण. व्याकरण. Yes. So during this time, a great Kashmir scholar named Keshav Kashmiri came to Navadvīpa to hold discussions on the Shastras. The Kashmir Pandit was a champion scholar and he had traveled to all places of learning in India. Finally, he came to Navadvīpa to contest the learned Pandits there. The Pandits of Navadvīpa decided to match Nimāi Paṇḍita, Lord Caitanya, with the Kashmiri Pandit, thinking that if the Nimāi Paṇḍita were defeated, they would have another chance to debate with the scholar, for Nimāi Paṇḍita was only a boy. इस दौरान एक बड़ा स्कॉलर जिसका नाम था केशव कश्मीरी, वो नवद्वीप में आ जाता है ना. वो स्कॉलर है, वो भक्त नहीं है. वो स्कॉलर है, सिर्फ वो शास्त्रों के ऊपर डिस्कशंस करता है ना. तो वो ऐसा इतना ईगो में है, वो इतना ईगोइस्टिक हो गया है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता शास्त्रों में. ऐसा डिस्कशन करेंगे कि कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता. इतना अहम आ गया था उसके अंदर. ईगो से भरा हुआ था वो आदमी. और वो चैतन्य महाप्रभु के गांव में पहुंच जाता है ऐसा चैलेंज देने के लिए. कोई है तो बताइए, कोई कर सकता है मेरे से डिबेट. कश्मीर पंडित वाज ए चैंपियन स्कॉलर. तो वो सारी जगह पे वो ट्रेवल करता रहता है इंडिया में. कोई मुझे चैलेंज करेगा, कोई मुझे डिफीट कर सकता है. एंड फाइनली ही इज अराइविंग टू नवद्वीप, टू मायापुर, टू कंटेस्ट द लर्नेड पंडित देयर. यहाँ के पंडितों से डिस्कशन करने के लिए आया हूँ. सुना कि यहाँ के पंडित बहुत स्कॉलर हैं, उनको मैं डिफीट करने के लिए आया हूँ. तो यहाँ के जो पंडित थे उन्होंने क्या किया, निमाई पंडित को इस केशव कश्मीरी के साथ बिठाते हैं, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को ना. क्योंकि अगर निमाई पंडित अगर हार जाता है तो हम सोचेंगे कि इसको किसी और से मिलाएंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लड़का ही है. एक लड़का ही है. निमाई पंडित तो एक छोटा सा बच्चा है. And if the Kashmir Pandit were defeated, then they would even be more glorified, because people would proclaim that a mere boy of Navadvīpa had defeated a champion scholar who was famous throughout India. It so happened that Nimāi Paṇḍita met Keshav Kashmiri while strolling on the banks of the Ganges. तो अगर केशव कश्मीरी हार गया ये छोटे से बच्चे से, तो ये तो बहुत बड़ा चैंपियन स्कॉलर है पूरे भारत का. तो वो इस तरह करके वो देख रहे हैं कि ये जो निमाई पंडित है, इसने केशव कश्मीरी को जस्ट ये गंगा में देख रहा है, बैंक्स ऑफ गंजीज में देख रहा है. The Lord requested him to compose a Sanskrit verse in praise of the Ganges, and the Pandit within a short time composed 100 shlokas, reciting the verses like a storm and showing the strength of his vast learning. तो भगवान उनको बोलते हैं कि गंगा की स्तुति में, गंगा के गुणगान में एक संस्कृत का एक श्लोक बोल के दिखाइए. और जो केशव कश्मीरी था उसने थोड़े से टाइम में 100 श्लोक बोल दिए, तूफान की तरह. बताना चाहते थे एक श्लोक मैं 100 श्लोक बोल दूंगा, सब कुछ मुझे आता है, पूरा मैं ग्रेट लर्नेड हूँ, बहुत स्कॉलर हूँ, सब कुछ पता है मुझे. Nimāi Paṇḍita at once memorized all the shlokas without an error. He quoted a 64th shloka and pointed out the certain rhetorical and literary irregularities.
He particularly questioned the Pandit's use of the word Bhavani Bhartuhu. He pointed out that the use of this word was redundant. Bhavani means the wife of Shiva, and who else can be her bharta or husband? तो यहाँ पर भगवान ने वो सारे 100 के 100 श्लोक एकदम याद कर लिए और 64 श्लोक में ये वर्ड जो है भवानी भर्ता भर्तु उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये गलत बोला है तुमने, है ना। भवानी तो शिवा है, उनकी जो वाइफ है ना, who can be her bharta or husband, means Bhavani means the wife of Shiva. He also pointed out several other discrepancies, and the Kashmir Pandit was struck with wonder. He was astonished that a mere student of grammar could point out the literary mistakes of an erudite scholar. Although this matter was ended prior to any public meeting, the news spread like wildfire all over Navadvīpa. But finally, Keshav Kashmiri was ordered in a dream by Saraswati, the goddess of learning, to submit to the Lord, and thus the Kashmir Pandit became a follower of the Lord. तो भगवान ने और सारे उसकी जो गलतियां थी, त्रुटियां थी, उसको फोकस किया, उसको शो किया, और वो एकदम अचंभे में आ जाता है कि ये छोटा सा बच्चा ग्रामर का ये मेरी मिस्टेक्स निकाल रहा है। तो ये पब्लिक मीटिंग खत्म होने से पहले ही ये पूरी न्यूज एकदम पूरे नवद्वीप में पहुंच जाती है। जैसे निमाई पंडित ने, छोटे से बच्चे ने, इतने बड़े चैंपियन स्कॉलर जो पूरे इंडिया का इतना चैंपियन है, उसको हरा दिया। तो सरस्वती माँ उस केशव कश्मीरी को बोलती है सपने में कि भगवान का आश्रय ले लीजिए, भगवान को सबमिट करिए, भगवान को सरेंडर करिए। तो सरस्वती माँ का वो ऑर्डर लेकर भगवान को फॉलोअर बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। प्रभु जी, ये भवानी क्या है उसका आगे वर्ड? भर्तु, भवानी भर्तु। पर ये क्या मीनिंग था इसका, इनका बोलने का? भवानी का मतलब है वाइफ ऑफ शिवा। वो तो समझ में आ गया, पर व्हाई रिसाइटेड भवानी भर्तु? He recited like that in one of the shlokas, like that. Particular question, Pandita use of the word Bhavani Vartu. Now, this word was redundant. He also मतलब उसने गलत वर्ड का यूज किया था उस श्लोक में। प्रभु जी 64th श्लोक में उसने जो है गंगा को भवानी भर्तु बोला था, गंगा की प्रेज में। तो वो उन्होंने यही कहा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट गंगा में भी भवानी भर्तु। वही भवानी भर्तु तो डिफरेंट है, वो अलग है, तो इसलिए भगवान ने उसका मिस्टेक पॉइंट आउट किया यहाँ पर। दिस इज द मिस्टेक इन द श्लोका। वो अपने आप को समझता था कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, स्पेशलाइज्ड हूँ, और भगवान मिस्टेक्स निकाल रहे हैं और भी कई तरह की डिस्क्रिपेंसीज निकाल रहे हैं। तो एकदम वो एकदम पानी हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, भगवान को सबमिट कर लेता है। And take the surrender to the Lord. Best is to submit the mistakes and surrender to the Lord. That is the best behavior, best attitude, rather than maintain the ego and go out of spirituality. जितना हम अपना मिस्टेक्स को एग्री करेंगे और सरेंडर करेंगे, उतना प्रोग्रेस करेंगे लाइफ में। और जितना हम स्टबन रहेंगे, ईगोइस्टिक रहेंगे, प्राइड में रहेंगे, उतना बाहर चले जाएंगे। The Lord was then married with great pomp and gaiety, and at this time he began to preach the congregational chanting of the holy name of the Lord at Navadvīpa. Some of the brāhmaṇas became envious of his popularity, and they put many hindrances on his path. They were so jealous that they finally took the matter before the Muslim magistrate at Navadvīpa. Bengal was then governed by Pathans, and the governor of the province was Nawab Hussain Shah. तो भगवान की फिर शादी हो रही है, और उसके बाद भगवान ने संकीर्तन, हरि नाम का प्रचार
शुरू कर दिया नवद्वीप में। और कुछ जो उसमें से ब्राह्मणास थे, ईर्षा करके, भगवान से जेलसी करके, भगवान का इतना यश बढ़ रहा है, उससे जेलसी हो रही है, तो उन्होंने उसमें बाधा डालने के लिए, उसमें विघ्न डालने के लिए वो ये सारा मैटर मुस्लिम मजिस्ट्रेट के पास ले आए। ये चल रहा है नवद्वीप में, क्योंकि उस समय पठान्स का राज था, मुस्लिम मुगल्स का राज था, और जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नवाब हुसैन शाह, क्योंकि उसमें मुस्लिम राज चल रहा था। उस समय मुसलमानों का राज चल रहा था। The magistrate of Navadvīpa took up the complaints of the brāhmaṇas seriously, and at first he warned the followers of Nimāi Paṇḍita not to chant loudly the name of Hari. But Lord Caitanya asked his followers to disobey the orders of Qazi, and they went on with their Sankirtan chanting party as usual. The magistrate then sent constables who interrupted the Sankirtan and broke some of the mridanga's drums. तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा था उसमें। बहुत सीरियसली ले लिया कंप्लेंट्स को, और सारे चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स को वो बोल दिया, किसी ने ये हरे कृष्णा लाउडली नहीं बोलना है। और चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं उसको डिसोबे कर दो, किसी का कोई कहना नहीं मानना है, और आप संकीर्तन एज यूजुअल करते रहो। मैजिस्ट्रेट ने क्या किया? वो संकीर्तन को रोककर मृदंगा को तोड़ दिया। When Nimāi Paṇḍita heard of this incident, he organized a party for civil disobedience. He is a pioneer of the civil disobedience movement in India for the right cause. He organized a procession for 100,000 men with thousands of mridangas and kartas, hand cymbals. And this procession passed over the roads of Navadvīpa in defense of the Qazi, who had issued the order. Finally, the procession reached the house of Qazi, who went upstairs out of fear of the masses. चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जब उसने मृदंगा तोड़ दिया, मृदंगा मीन्स बलराम जी को प्रहार किया, अटैक किया, जब उसने ऐसा किया तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? 100,000 1,00,000 लोगों को लेके, 1,00,000 लोग, पहले 5 लोग, फिर 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोगों को लेके चल रहे हैं, जो कि मृदंगा, थाउजेंड्स ऑफ मृदंगा, उसमें 1000 तो मृदंग उजाले बजाने वाले। हमारे घर में कीर्तन होता है तो कितने मृदंगा आते हैं? 1 यहाँ पर 1000 मृदंगा बज रहे हैं। मोबाइल की आवाज आ रही है। हाँ, हमारे घर में कीर्तन होता है, एक मृदंगा आता है, यहाँ 1000 मृदंगा बज रहे हैं। 1000 मृदंगास आर गोइंग ऑन एंड करतास। तो वो उसका जो साउंड है, दैट इज रोरिंग लाइक एनीथिंग। 1000 मृदंगा बजेंगे, जो कीर्तन करताल बजेंगे, और ये पूरा ऐसा प्रोसेशन चलेगा काजी को प्रोटेस्ट करते हुए, जिसने ऐसा ऑर्डर निकाला है, और उसके घर पे पहुंच गए हैं ना। और वो ऐसा प्रोसेशन देखकर, ऐसा संकीर्तन देख के वो डर के आगे ऊपर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर छुप गया जाकर। इतना क्राउड देख लिया डिवोटीज का, ऊपर जाके छुप गया। The great crowds assembled at the Qazi's house displayed a violent temper, but the Lord asked them to be peaceful. At this time, the Qazi came down and tried to pacify the Lord by addressing him as his nephew. He pointed out that Nīlāmbara Cakravartī referred to him as an uncle, and consequently Śrīmatī Śacīdevī, the mother of Nimāi Paṇḍita, was his sister. He asked the Lord whether his sister's son could be angry at his maternal uncle. इस तरह वो है ना, इस तरह वो मामा बन गए थे, ऐसे बिहेव करने लगा वो, है ना। काजी इस तरह बिहेव करने लगा, तो वो क्या करने लगा? वायलेंट टेम्पर।
सची देवी को अपनी बहन बना लिया, अपना नेफ्यू, भगवान को अपना नेफ्यू बना लिया। तो इस तरह वो ऐसे बिहेव करने लगा। And the Lord replied that since the Qazi was his maternal uncle, he should receive his nephew well at his home. In this way, the issue was mitigated, and the two learned scholars began a long discussion on the Quran and Hindu Shastras. भगवान ने कहा अगर तुमने मुझे मेरा नेफ्यू बनाया तो मुझे अच्छी तरह रिसीव करना है तुमको। इस तरह ये मामला सुलझ गया और जो दो लर्नेड स्कॉलर थे उन्होंने कुरान और हिंदू शास्त्रों के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया। The Lord raised the question of cow killing and Qazi properly answered him by referring to the Quran. In turn, the Qazi also questioned the Lord about cow sacrifice in the Vedas. And the Lord replied that such a sacrifice as mentioned in the Vedas is not actually cow killing. In that sacrifice, an old bull or cow was sacrificed for the sake of receiving a fresh younger life by the power of Vedic mantras. तो यहाँ काउ किलिंग के बारे में बताया जाता है। काजी क्या बोल रहा है, कुरान को रेफर करके बोल रहा है। तो काजी भगवान से पूछ रहा है कि वेदास में क्या लिखा हुआ काउ सैक्रिफाइस के बारे में। तो भगवान बता रहे हैं वेदास में there is no actually cow killing, there is no mention। उसमें क्या होता है, in that an old bull or cow was sacrificed for the sake of receiving a fresh younger life by the power of Vedic mantras। दूसरा नया जीवन देने के लिए उस काव को सेक्रीफाइस किया जाता है, दूसरा बर्थ देने के लिए, न्यू बर्थ देने के लिए। नॉट फॉर किलिंग, नॉट फॉर एंजॉइंग द फ्लैश, नॉट फॉर दैट पर्पस, फॉर गिविंग ए न्यू बर्थ that is mentioned in the Shastras. But in the Kali Yuga, such cow sacrifices are forbidden because there are no qualified brāhmaṇas capable of conducting such a sacrifice. In fact, in Kali Yuga, all the yagnas are forbidden because they are useless attempts by foolish men. In Kali Yuga, only the Sankirtan Yagna is recommended for all practical purposes. Speaking in this way, the Lord finally convinced the Qazi, who became the Lord's follower. तो सारे सबको फॉलोवर ही बनना है। जितना मर्जी तुम इगोइस्टिक हो जाओगे, जितना तुम अहम कर लोगे, जितना मर्जी तुम भौतिक कलमशों में फंसे रहोगे, भगवान तुम्हें कन्विंस करके अपना फॉलोअर बना लेंगे। तो बेटर टू फॉलो दिस संकीर्तन यज्ञ एंड बिकम चैतन्य महाप्रभु's फॉलोअर, बिकम कृष्णा's फॉलोअर्स। केशव कश्मीरी भी हो गया, सारे ब्राह्मण भी हो गया, वे काजी भी, मुसलमान ये भी बन गया फॉलोअर। The Qazi thenceforth declared that no one should hinder the Sankirtan movement which was started by the Lord. And the Qazi left this order in his will for the sake of progeny. The Qazi's tomb still exists in the area of Navadvīpa, and the Hindu pilgrims go there to show their respects. The Qazi's descendants are residents, and they never objected to Sankirtan even during the Hindu-Muslim riot days. आप लोगों में से मायापुर कौन गया हुआ है? मैं गई हूँ प्रभु जी। हाँ, तो आपने ये उसकी चांद काजी की समाधि देखी है? प्रभु जी अब मेरे ख्याल हम यहाँ गए हुए 7-8 साल से ऊपर हो गए, तो थोड़ा ध्यान से उतर गई है। भूल गए। वहां पर जब भी हम ट्रिप लेके जाते हैं चलेंगे ना प्रभु जी, आप दोबारा से चलेंगे, अब तो अच्छे से फ्रेश मेमोरी रहेगी। हाँ, अभी जा रहा है, दोबारा नवंबर में ट्रिप जा रहा है। तो उसमें क्या है, वो ट्रिप में उसमें उस समाधि में जरूर लेकर जाते हैं, वो जो चांद काजी की समाधि, और वहां पर जाके हम ड्रामा भी प्ले करते हैं, इस लीला को प्ले करते हैं वहां पर। तो वो जो काजी है वो भी भगवान का भक्त बन गया है, उसकी समाधि है वहां पर, और सारे लोग उसको देखने, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और कोई भी संकीर्तन में रुकावट नहीं डालता है। एक्चुअल में ये चांद काजी को सपना आया था
और सपने में कौन आया था? भगवान कौन से भगवान आए थे? कृष्ण भगवान। सपने में उनके नरसिम्हदेव आए थे, नरसिम्हदेव। और नरसिम्हदेव आके चांद काजी की छाती पे बैठ गए थे और उसकी छाती को चीरने लगे थे कि तुम मेरे भक्तों के मृदंगा को तोड़ रहे हो, उनके कीर्तन में रुकावट डाल रहे हो, मैं तुम्हारे छाती को चीर करके पूरा चकनाचूर कर दूंगा। ऐसे उसको ड्रीम में नरसिम्हदेव आ रहे हैं। तो एकदम जब उठता है तो ये प्रोसेशन देख रहा है वो। That's why he surrendered to the Lord. So anybody who will stop kirtan, who will become a obstacle in the preaching of Krishna consciousness, will be victimized by the Lord. भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसका पूरा ऐसी तैसी कर देंगे भगवान उसकी। So better not to become an obstacle in the Sankirtan movement. This incident shows clearly that the Lord was not a so-called timid Vaishnava. A Vaishnava is a fearless devotee of the Lord, and for the right cause, he can take any step suitable for the purpose. Arjuna was also a Vaishnava devotee of Lord Krishna, and he fought valiantly for the satisfaction of the Lord. Similarly, Vajrangji or Hanuman was also a devotee of Lord Ram, and he gave lessons to the non-devotee party of Ravan. The principles of Vaishnavism are to satisfy the Lord by all means. A Vaishnava is by nature a non-violent, peaceful living being, and he has all the good qualities of God. But when the non-devotee blasphemes the Lord or his devotee, the Vaishnava never tolerates such impudency. तो इससे पता चलता है कि भगवान कोई वैसे ही कोई डिवोटी नहीं है, भगवान एक्चुअल में जो है वैष्णव प्रिंसिपल्स को शो कर रहे हैं। जो वैष्णव है वो निडर है, उसको किसी चीज का डर नहीं है, उसको मृत्यु का भी डर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मृत्यु भी कभी आएगी नहीं। न जायते न म्रियते वा कदाचित्। The soul will never die. Soul has no birth, no death. वो नॉलेज उसके अंदर पूरा कन्विंस्ड है वो इस फैक्ट से। तो अच्छे कार्य के लिए वो अच्छा स्टेप उठाता है। अर्जुन भी ऐसे कृष्ण भगवान के लिए वो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, उनके लिए लड़ रहा है। हनुमान जी लॉर्ड राम जी के लिए लड़ रहे हैं, रावण की सारी सोसाइटी को लेसन्स दे रहे हैं। तो ऐसे ये जो भक्ति का प्रिंसिपल है, भगवान को तुष्टि के लिए, भगवान के प्लेजर के लिए, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए किया। तो जो भक्त है वो नॉन वायलेंट है, वो हिंसा नहीं करता है, पीसफुल है, और उसके अंदर सारी क्वालिटीज, भगवान की सारी क्वालिटीज है। बट जब जो नास्तिक है, जो राक्षस है, जो भगवान को क्रिटिसाइज करता है, ब्लास्फेम करता है, तो वो वैष्णव टॉलरेट नहीं करता है। उस समय हमें चुप नहीं रहना, उस समय पूरा गुस्सा आ जाना है, उस समय पूरा उसको डिफीट करना उस आदमी को हमें। After this incident, the Lord began to preach and propagate his Bhagavad Dharma or Sankirtan movement more vigorously. Whoever stood against this propagation of the Yuga Dharma or the duty of the age was properly punished by various types of chastisement. Two brāhmaṇa gentlemen named Chapal and Gopal, who also happened to be maternal uncles of the Lord, were inflicted with leprosy by way of chastisement, and later, when they were repentant, they were accepted by the Lord. तो इस लीला के बाद भगवान ने ये प्रचार प्रसार भागवत धर्म का, संकीर्तन धर्म का और ज्यादा एक्टिवली, विगरसली इसको और प्रीच करना शुरू कर दिया। और जो भी इसके विघ्न में आ रहा है, इसके अगेंस्ट जो खड़ा हो रहा है, उसको सजा भी मिल रही है, अलग तरह की सजा उसको दी जा रही है। इसलिए दो ब्राह्मणास थे, गोपाल और चप्पल, जो भगवान के मेटरनल अंकल थे, उनको लिप्रोसी हो जाती है, उनको भी पनिशमेंट दी जाती है, क्योंकि उन्होंने विघ्न डाला, वे भगवान ने लिप्रोसी कर दिया। और
जो वो पछतावा कर रहे थे, भगवान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया. In the course of his preaching work, he used to send daily all his followers, including Srila Nityanand Prabhu and Thakur Haridas, two chief whips of his party, from door to door to preach the Śrīmad Bhāgavatam. All of Navadvīpa was charged with his Sankirtan movement, and his headquarters were situated at the house of Srivas Thakur and Shri Advaita Prabhu, two of his chief householder disciples. तो प्रचार प्रसार के लिए चैतन्य महाप्रभु रोज अपने फॉलोअर्स को भेजते थे. नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी, प्रभु जी बलराम. बलराम जी. हरिदास ठाकुर कौन है? प्रभु जी उनके 6 वेद व्यास जी के. वेद व्यास जी. नो 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 प्रभु नारद जी. नारद. नो. ब्रह्मा प्रभु जी. Yes, two people have given the right answer. Two people have given right answer. ब्रह्मा जी. Lakshmi ji, Sunita Kaul ji, and Krishna Koli Roy Chaudhary. It is Brahma. Haridas Thakur ji was ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी का इनकारनेशन है हरिदास ठाकुर. वो ऐसी वैसी पर्सनालिटी नहीं है. नाम आचार्य है. नाम के आचार्य. कितना नाम ले रहे हैं रोज? 3 लाख. 3 लाख. तो 16 माला करनी मुश्किल हो जाती है हमारे से. प्रभु जी अब हम आज मैंने 8 माला कर लिए सुबह सुबह. 4 बजे से उठ करके 4 माला तब, और नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर दोबारा. ये कार्तिक का महीना है, ज्यादा चैंटिंग करिए. Yes, प्रभु. You can chant more in this month of Kartik. Okay. Thakur Haridas. These are the main two personalities of Chaitanya Mahaprabhu. Nityanand Prabhu और हरिदास ठाकुर मेन सोल्जर थे चैतन्य महाप्रभु के पार्टी के. भगवान हर घर घर में जाओ, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करो. इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं डोर टू डोर जाने के लिए. और हम आपको क्या क्या बोल रहे हैं? अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स को सेशन ज्वाइन कराओ. सेम इंस्ट्रक्शन है. चैतन्य महाप्रभु कह रहे घर घर जाओ, हर दरवाजे में जाओ. और हम बोल रहे हैं आपको सारे लोगों को सेशन ज्वाइन कराओ, माला दो, बुक्स दो और उनको वृंदावन लेके आओ. तो ये प्रचार प्रसार का जो फॉर्मूला है, ये 500 साल पुराना फॉर्मूला चल रहा है. चैतन्य महाप्रभु के टाइम से प्रीचिंग पॉलिसी चल रही है. ऑल ऑफ नवद्वीप वाज सरचार्ज विद द संकीर्तन. पूरा संकीर्तन चल रहा है. चैतन्य महाप्रभु ने 7 पार्टीज बना दी थी संकीर्तन की. 7 पार्टीज, 7 पार्टीज है ना. जैसे हमारे तो एक कीर्तन हुआ ग्रेटर कैलाश में है ना, दूसरा कीर्तन हो रहा है यहाँ मैग्नोलियाज में, तीसरा हो रहा है सैनिक फार्म में, चौथा हो रहा है वसंत विहार में. तो ऐसे 7 कीर्तन हो रहे हैं एट ए टाइम चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे. एवरी डे is happening. 7 kirtans at a time is happening. So the whole Navadvīpa was just surcharged with the Sankirtan movement. और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? एट द हाउस ऑफ श्रीवास ठाकुर. श्रीवास ठाकुर कौन है? साक्षी जी, साक्षी मल्होत्रा. नारद जी हैं. मैं तो साक्षी जी से पूछा था. हरे कृष्ण प्रभु जी. बताइए. श्रीवास ठाकुर जी नारद जी है. यस, तो आपने सुन लिया आंसर, फिर वो रिपीट कर दिया. नारद जी है ना, इज नारद मुनि. अच्छा, सेकंड है अद्वैत प्रभु कौन है? साक्षी जी. महाविष्णु है. आप क्यों बोलते हैं शमी जी? नहीं, ये तो प्रभा जी ने बोला है प्रभु जी. अच्छा अच्छा, प्रभु जी आपने नाम नहीं लिया था ना, इसलिए. मैं साक्षी जी बोला था. अच्छा, सॉरी. अद्वैत प्रभु इज महाविष्णु. श्रीवास ठाकुर इज नारद मुनि.
हरिदास ठाकुर इज ब्रह्मा जी, नित्यानंद प्रभु इज बलराम जी। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे एकदम। प्रभु तो ये यहाँ पंच महामंत्र में आपने ये तो नहीं बताया श्री हरिदास ठाकुर का? नहीं बताए, कुछ सरप्राइज भी आता होता है। आपने अपने गदाधर का बताया था, राधा रानी कृष्ण। यस यस, मुझे कुछ नई चीजें भी तो सीखनी है हमें भागवतम में। मतलब तो हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मा जी है। हाँ ब्रह्मा जी है। और ये जो दोनों हैं श्रीवास और अद्वैत प्रभु, ये दोनों हाउस होल्डर डिसाइपल्स हैं। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है, these are chief householder disciples. They are chief householder disciples. हरिदास और दूसरे कौन प्रभु जी? श्रीवास ठाकुर और अद्वैत प्रभु are two of his chief householder disciples. चैतन्य महाप्रभु के two chief householder disciples हैं। These two learned heads of the brāhmaṇa community were the most ardent supporters of Lord Chaitanya's movement. Shri Advait Prabhu was the chief cause for the advent of the Lord. When Advait Prabhu saw the total human society was full of materialistic activities and devoid of devotional service, which alone could save mankind from the threefold miseries of material existence, he, out of his causeless compassion for the age, warned human society, prayed fervently for the incarnation of the Lord, and continually worshipped the Lord with the water of the Ganges and leaves of the holy Tulsi tree. As far as the preaching work in the Sankirtan movement was concerned, everyone was expected to do his daily share according to the order of the Lord. तो चैतन्य महाप्रभु को किसने बुलाया था? हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। नित्यानंद प्रभु जी ने बुलाया था। जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। पायल माता जी, आपको पता है चैतन्य महाप्रभु को किसने बुलाया इधर अर्थली प्लैनेट? प्रभु माता जी ने बोला नित्यानंद प्रभु, तो मैं भी कॉपी प्लेस ही कर सकती हूँ। नहीं, गलत आंसर है वो। नहीं, मुझे फिर नहीं पता है। नहीं, अंजलि माता जी, आप बताइए। नहीं प्रभु जी। कौन बताएगा फिर? Who has called Chaitanya Mahaprabhu to this earthly planet? अद्वैत आचार्य, वो चैट में लिख के आया है। प्रभु जी मैं बताऊं? प्रभु जी मैंने अभी पढ़ा है उसमें चैट में प्रभु जी अद्वैताचार्य जी ने अद्वैताचार्य जी ने प्रभु जी महाविष्णु ही तो बुलाएंगे ना। महाविष्णु इनकारनेशन लेते हैं अपना अवतार है ना ये तो। पहले गलत आंसर देते हो फिर ठीक देते हो। प्रभु जी इसमें लिखा है। प्रभु जी आप, मैं क्वेश्चन नहीं समझी थी, क्वेश्चन समझी नहीं थी मैं। आपने पूछा ना किसने बुलाया, पृथ्वी पर किसने बुलाया, मुझे इसके नहीं समझ में आया था। पृथ्वी पे बुला रहे हैं कि यहाँ पर पूरा घोर तो प्रभु जी महाविष्णु का अवतार है तो अद्वैताचार्य जी तो बुलाएंगे। वो एक दादाजी की उम्र के हैं। अद्वैताचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु की दादा की उम्र के हैं, लाइक ए ग्रैंडफादर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो वो महाप्रभु को बुला रहे हैं, प्लीज कम, हाउ दिस सोसाइटी इज फुल ऑफ मटेरियलिज्म, full of ghor kali. On this earth, no Prabhuji, on this earth he called. Earth only called. So on the request of Advait Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu appeared 500 years back, 1486, in the land of Nadia. तो वो भगवान के भक्त हैं जो भगवान को बुलाते हैं, है ना? भगवान के डिवोटीज हैं, भगवान को बुला रहे हैं ताकि पूरा भक्ति जो सारे भौतिक कलमशों से हमें बाहर निकालें, अपनी अहेतु की कृपा दे और अपनी पूजा में लगाएं। As far as preaching work in the Sankirtan, everyone is expected to do his daily share according to the order of the Lord. So this is the message for today. Any questions? प्रभु जी श्रीवास ठाकुर जी किसके इनकारनेशन थे? नारद मुनि। सोनम जी, नारद मुनि जी के थे। हाँ प्रभु जी पहले तो आप अपना वीडियो ऑन करिए और हमें आपकी शक्ल देखनी है।
अब कृष्णा भगवान की शक्ल देखने का। तो आप लोगों को सबको पता है, सब डिवोटीज को, कि कल प्रभु जी का एक्सीडेंट हो गया था और आज फिर भी मैंने मना किया था, तभी भी ये क्लास ले रहे हैं। प्रभु आप बताते ही नहीं है, प्रभु जी कैसे आपने कैसे बताया ही नहीं। रंजना जी आपको पता ही नहीं हे चला। भगवान, हमारे तो कैसे हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? इसीलिए हम प्रभु जी का फेस देखना चाहते हैं। प्रभु जी, आई वांट टू सी योर फेस। प्रभु जी आज इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि प्रभु जी के सर में टांके लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा ब्लड बहा है कल सब प्रभु जी का। सिर में टांके, सर में टांके लगे हैं। ओ माय गॉड। हो जाएगा ठीक, जल्दी हो जाएगा ठीक, चिंता तो की बात, प्रभु चिंता की बात नहीं। हुआ कैसे? हुआ कैसे? प्रभु जी पहले आप सारी बातें बताइए सबको। हम लोग को हक है आपके बारे में जानने का। एक्चुअल में